Time for the launch of iNET's World Campus by Mr. Rajesh Mallaji from Red Grape Technologies, New Delhi. I would like to request him for launching this particular in iNET's World Campus. Thank you. It is a great pleasure for me to be here and to present before you iNET's World Campus, which is an educational platform that is conceived, mentored and sponsored by the Institute iNETs under the guidance of Dr. Balram Singh. And I'm also happy that iNETs trusted our company for building this platform and making us a part of this noble initiative. As we can all see that we are being present at the ground level, and education has no boundaries. So at this time of technology, we need the proper technology support also that would empower the various innovations and the unique approaches to education that comes to the iNETs. iNETs World Campus, or IWC, is an online platform that empowers educators and students in any domain or area of interest to offer and pursue courses in a structured format. I would like to present a video before you how the thing works. So I will just show you a screen recording of the system. Some are available for free. To participate on the courses, the first step you have to do is to register on the website. बहुत सारी facilities चाहिए और even though maybe we are setting up in the rural area, but फिर भी classroom natural नहीं होता. भारत की परंपरा में पढ़ाई जो है नेचुरल कंडीशंस में होती थी, तो हम चाहते ऐसा है कि इसके माध्यम से बच्चे अपने घर में भी बैठ के पढ़ सकते हैं, असाइनमेंट उनको दिया जा सकता है. जिस तरह का मॉडल हम लोगों ने निकाला है उसमें किसी भी स्तर पे पढ़ाई हो सकती है और इसके माध्यम से ये होगा कि वो नेचुरल कंडीशंस में रहेंगे बच्चे. वो अपने जैसे अगर कोई अपने घर में कोई काम करना चाहता है, कोई व्यवसायिक काम करना चाहता है, तो भी वो कोर्स यहाँ से ले सकता है और अपने उसका असाइनमेंट उसके घर के परिस्थितियों के अनुसार होगा. ये नहीं होगा कि हम जो पढ़ाना चाहे तो वो पढ़िए, बल्कि आपकी जो इच्छा है, आपका जो जिसके प्रति जिज्ञासा है, जिसमें आपकी रुचि है, उसके तरह से हम पढ़ाएंगे. तो अभी ये मॉडल जो है एक तरह से कहते हैं हमारे यहाँ की गुरु परंपरा थी. आप गुरु के यहाँ जाएं और वहाँ पे गुरु आपको समझ के आपको पढ़ाता था. जो राजा के लिए राजा की बातें पढ़ाई जाती थी, जो व्यवसायी थे उनके व्यवसाय की बातें पढ़ाई जाती थी. तो उस तरह की व्यवस्था हम लोग शुरू करने की कोशिश करें जिसमें कि टीचर्स जो है एडजस्ट करेंगे अपने को. तो ये राजेश मल्लाह नाम है, ये इन्होंने वो राम को केवट पार किए थे ना, ये हमारे लिए वैसे ही बने हुए हैं. ये हमारी सारी चीज़ों को, सारी परेशानियों को दूर करते रहते हैं बीच बीच में और आज के माध्यम से. तो राजेश जी ये है कि इसको हम जैसे जूम जो व्योम का मतलब है, जो आकाश, व्योम का मतलब होता है आकाश. ज्ञान हमारे यहाँ की परंपरा में आकाश तत्व में माना जाता है, इसलिए उसका नाम वो रखा है. ये बात यह है कि गांव में इसकी उपलब्धि कैसे हो सकती है, क्योंकि बैंडविड्थ उतनी है नहीं, तो उसके लिए आप कुछ कर पा रहे हैं? iNETs वर्ल्ड कैंपस में जो कोर्सेज हैं और उसके लिए इतना ज़्यादा बैंडविड्थ तो अभी नहीं चाहिए होता है. और अभी जो गांव की कनेक्टिविटीज़ हैं वो समय के साथ बेटर होती जा रही है. तो ये एक ज़रूर आशा की किरण है और अभी भी जो स्तर है इसमें भी कोई वैसे खास दिक्कत नहीं होती है और ये चीज़ अभी भी इस्तेमाल की जा सकती है ऐसे. Namaskar Rajesh ji, such a fine initiative. Thanks to Dr. Balram Singh ji and thanks for the technological implementation from your side. So what is the option of, I mean, countrywide there are so many people teaching Sanskrit, yoga, numerology, so many things. Is there a specific module for onboarding where anybody and everybody can reach out to you? He has a bunch of students and he probably has great knowledge, and people with great knowledge
are not blessed with the art of taking their knowledge to a wider audience, is what I have seen as a marketeer. So ऐसा कुछ onboarding का भी है, where there is a possibility of quick onboarding and a revenue sharing model with INADS, where the mentor or the course delivering person can have a quick agreement with you. I got your question. See, जैसा हमने बताया कि डेमोक्रेसी के कारण रुक भी जाती है, तो और हमारे देश में कई किस्म की विद्याएं हैं, तो अगर किसी को भी कोई विद्या किसी को सिखानी है तो वो आसानी से इस प्लेटफॉर्म में आ सकता है और अपने विद्या को एक तरीके से, एक स्ट्रक्चर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, एक स्ट्रक्चर में डाल के एक डिसिप्लिन के साथ अब वो आगे बढ़ा सकता है। तो पहली बात तो कि कोई भी यहाँ पे अपना जो एजुकेशन, साइंस हो, स्पिरिचुअलिटी हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो एक स्ट्रक्चर में डाल के और फिर स्टूडेंट्स को इनवाइट करके, स्टूडेंट्स को जोड़कर, और बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि टीचर और स्टूडेंट्स आमने सामने हो, क्योंकि जब हम ग्रास रूट लेवल्स में जाना चाह रहे हैं तो हमें वैसी टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत भी हो जो उनके रीच में हो। तो डेफिनेटली आईनेट्स वर्ल्ड कैंपस इस चीज़ के लिए है और अभी सक्षम है। ठीक होनी चाहिए। तो ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में मैं अपने आप को काफ़ी भाग्यवान महसूस करता हूँ कि उनके साथ टच में आया और मैं अपनी सेवाएं दे पा रहा हूँ। तो ये व्योम प्लेटफॉर्म है और बहुत लोग सोचेंगे कि व्योम की क्या ज़रूरत है या क्यों हम इस पे काम कर रहे हैं। तो पहली बात कि ये शिक्षकों के लिए स्पेशल बनाया गया है। जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म होते हैं, मीट होती है, जूम होती है, बहुत दूसरी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये शिक्षकों के लिए बनाया गया है जो कि क्लास को ठीक से लेने में बहुत ज़्यादा सहायता करें। तो इसमें जैसे आप कलम से आप कागज़ में लिखते हो, उसी तरीके से आप बिल्कुल कलम की तरह एक डिवाइस इसमें लग जाती है और आप ब्लैक बोर्ड में जैसे, ये सर की रिक्वायरमेंट थी, तो इसको हम देखिए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम जन्मदिन ढूंढ रहे हैं। तो जन्मदिन में देखिए जो वीडियो मैच कर रहा है वो सारे आ गए हैं यहाँ पे। और ये न सिर्फ इसके मतलब लिखावट पे है, लेकिन क्या बोला जा रहा है इसके ऊपर है। तो यहाँ देखेंगे आप कि यहाँ निशान आ गई है कि कहाँ कहाँ वक्ता ने कहाँ जन्मदिन बोला है। आप देखेंगे छोटा सा पॉपअप में आ गया और क्या बोला था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ें एजुकेशन में ज़रूरत होती है, हमेशा हमें वो डिफ़ॉल्ट में मिलता नहीं, विरासत में नहीं मिलती है। तो अपनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि जो हम चाह रहे हैं वो हम बना सके। तो इसमें प्रयास काफ़ी पहले से ही सर ने ले लिया और आज ये सब चीज़ें बनते बनते 2-3 साल हो गए हैं और मैं महसूस करता हूँ अभी हम कहीं तो जाके पहुँचे हैं कम से कम। और बहुत ही आगे बहुत सफ़र लंबा है और मैं ज़रूर चाहूँगा कि सर का आशीर्वाद रहे हमारे साथ और हम आगे जाएं। राजेश मल्लाह जी बहुत ही शालीन व्यक्ति हैं, बहुत ही इनके अंदर सामर्थ्य है। अब समय की थोड़ी सी कमी होती है, कभी कभी बहुत सारे काम लगे रहते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं, जैसे हमने कहा ना, गांव के लोग हैं, गांव के लोगों के अंदर बड़ी क्षमता है, विद्यार्थियों के अंदर बड़ी क्षमता है, सारी विधाएं हैं, ये लोग सारे लोग लगे हुए हैं उसमें करने के लिए। तो जैसे अब कुछ कभी कभी नहीं समझ में आता, जैसे हमारे जैसे आदमी को ये सब टेक्निकल चीज़ें, तो मैंने जैसे हनुमान जी गए, उनको संजीवनी नहीं समझ में आ रही तो पूरा पहाड़ी उठा लिया। वो मैंने ये सीखा हुआ हनुमान जी से कि जो नहीं समझ में आए तो पूरा, अब हम इनको नहीं समझा सकते, मैंने यूट्यूब वालों को लिखा भी, उस जवाब ही नहीं दिया कुछ, तो मैंने कहा हम खुद ही बना लेते हैं और ऐसा बनाएंगे अब इसको शिक्षा के लिए कि उसमें सिर्फ तो अभी टेक्निकल चीज़ बता रहे हैं हम लोग, शिक्षा के लिए जो हमारे अनुभव की चीज़ें, एक्सपर्टीज है, कैसे एग्जाम लेना चाहिए, किस आज के युग में, जैसे ज्ञानेंद्र नहीं है, बोल रहे हैं हाँ ये तो है कि आमने सामने फ़र्क पड़ता है, आमने सामने मिलता भी चाहिए, लेकिन उसके बाद जो हमारे आमने सामने तो हम 50 मिनट के लिए मिलते बच्चे से, बाकी जो 23 घंटे तो कहीं और रहता है। तो उसके लिए हम कैसे काम करें, जैसे बता रहे हैं कि वो हम आप जो भी करें सब शिक्षा का काम हो सकता है। माता की उन्होंने बड़ी बड़ाई की, तो सिर्फ ये नहीं कि माता बनना ही बड़ाई नहीं है, माता के बड़प्पन वाला काम करने में बड़ाई है। भाई प्रोफेसर हूँ तो इसका मतलब नहीं बड़ा वैसे भी लंपटबाजी करूँगा तो फिर वो ठीक नहीं रहेगा ना, हमको प्रोफेसर की तरह ज्ञान होना चाहिए, सबके साथ उस तरह व्यवहार करना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। तो इसलिए एक ही समाज है जो संसार को बदल सकता है, वो शिक्षक समाज है। और अगर वो ठान लेगा तो ये चीज़ 1 साल में बदल सकती है, अगर वो ठान लेगा। तो इसलिए शिक्षक
बनना माता का, ऐसा कहते हैं पिता से 1000 गुना माता का स्थान होता है। सहस्त्रम पितृ माता, 1000 पिता से बराबर के बड़ा उसका स्थान होता है। लेकिन ये सिर्फ पैदा करने से नहीं होता है, ये उस स्तर पर पहुंचना पड़ता है। जैसे उन्होंने कहा ना कि माता लालन पालन में किस तरह की चीज़ों को संस्कार दे सकती है। अब उसके खुद के संस्कार नहीं होंगे तो क्या देगी? वो नहीं कर सकते। हमको व्यवस्था ऐसी करनी है कि माता की भी शिक्षा। हमारे स्कूल में प्रिंसिपल महोदय हैं ना, यहाँ पे हम लोग पेरेंट्स को भी बुला के उनको भी शिक्षित करते हैं, क्योंकि अगर वो शिक्षित होंगे तो बच्चा अपने आप से, खास करके छोटे बच्चे शिक्षित हो जाएंगे। एक चीज़ और सभी लोगों को स्वर्ग जाने की बड़ी लगी रहती कि हमको स्वर्ग मिले, नरक नहीं मिले। तो हमने कहा कि भाई आप लोगों को ऐसे जुड़ा जाएगा, उसको भी, वो भी ऑनलाइन हो रहा है, कि आपको जिसको भी स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग का मतलब जो आपको जिस स्वर्ग जैसा लगे, आपकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, तो सब परिवार ठीक होना चाहिए, आपके किसी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, इस सब के लिए आपको एक समस्या का समाधान दिया जाएगा। हमारे यहाँ के रीति रिवाज के, भारत की जो परंपरा है बहुत ही प्राचीन है, और ऋषि मुनि वो किसी के लिए अपने लिए तो कभी नहीं करते थे, और किसी अपने के लिए भी नहीं करते थे, वो तो सिर्फ औरों के लिए करते थे। और से वो जो ज्ञान है वो आज एक तरह से समझिए कि नहीं रह पाया है, क्योंकि अभ्यास नहीं कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें मेरा कहने का मतलब है कि इसमें हमारे पास जो अनुभव है, बहुत सारा अनुभव हमारा अपना खुद का है, बहुत सारा विद्यार्थियों का, बहुत सारे हमारे कॉलीग्स, हमारे मित्र जैसे ज्ञानेंद्र जैसे लोग कितने डेडिकेटेड आदमी हैं। देखिए, मैं तो उनको सोचता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ जितना वो कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को साथ में जोड़ के हमको लगता है कि अगले 5 साल में हम संसार बदल ही लेंगे। बदलने मतलब उनको सुधार के आगे अपने आप आत्मनिर्भर बना के, आत्मनिर्भर सिर्फ सब लोग से आत्मनिर्भर का मतलब सिर्फ हमको पैसे मिलेंगे, हम अपना खाना पीना, ऐसा नहीं। जो कह रहे थे कि हम उनके साथ देंगे, तो अपना काम है ये, काम हमारा और आपका नहीं है ये। अपना भारत में ये अपना अंग्रेजी नहीं है, अपना शब्द की, जैसे बोलते हैं हमारे गांव में कोई आता था तो बोले किसका खेत है, बोले अपना है, मतलब आप भी हैं उसमें। ये भारत में ही एक शब्द है, जो कि अंग्रेजी में इसका कोई शब्द ही नहीं है। तो इस तरह की जो हमारे यहाँ की सभ्यता है उसको सामने रखने के लिए, ये आज के युग का जो टेक्नोलॉजी की, जिसके माध्यम से लोग बहक जाते हैं, सोचते हैं कि अरे ये तो टेक्नोलॉजी हमारे पास तो नहीं है, हमारे पास तो हम लोग धूमी रमा के बैठ जाते हैं और जंगल में बैठेंगे, ये होगा। ऐसा नहीं। यहाँ पे वो धूमी रमा को बोलता है कि जंगल में क्यों जाते थे पढ़ने, लोग जंगल में क्यों जाते थे? इसलिए कि वहाँ एकांत हो। ये दुनिया भर की जो घर परिवार की समस्याएं हैं उनसे सबसे दूर रह के ध्यान दे के करें। अभी आप एक ये पकड़ा दीजिए किसी को, वो दुनिया से बाहर हो जाते हैं। आप घर में बैठा हुआ आदमी, इसको एक पकड़ा दीजिए, वो समझिए वो जंगल में बैठा हुआ है, घर में कुछ भी हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब, लेकिन इसका उपयोग कैसे करें हम? पहली बार 2007 में मैंने देखा, मेरे क्लास में कुछ बच्चे फ़ोन लेके आते थे, तो मैंने उनसे कहा कि सारे लोग फ़ोन लेके आओ जिसके पास फ़ोन, लेकिन फ़ोन वहाँ करना जहाँ मैं जो नंबर बताऊँ, सारा फ़ोन बंद। क्योंकि मैं बोला कि फ़ोन बताऊँगा, नंबर वहाँ से पूछना है, उसके बाद सबको बताना है। तो टेक्नोलॉजी होती है, शिक्षक के पास कितने ज्ञान के होते हैं। वो कंप्यूटर लेके आते थे, मैंने कहा कि भैया ऐसा करो, कंप्यूटर खोलो, सब लोग अपना पे जाना है, और वहाँ से जो आपको मिले हमको बताना है। तो शिक्षा तो कहीं से भी ली जा सकती। कोई जैसे माता पिता भाई बहन, यहाँ तक पड़ोसी शिक्षा देता रहते हैं। हमारे भारत की तो ऐसी वो है, सभ्यता है कि ये सब मिलता रहता है। तो वी वांट टू मेक इट रियली वेरी मॉडर्नाइज, अप टू डेट, टेक्नोलॉजी रिडन एवरीथिंग, सो दैट आपको गर्व लगे कि अपने सभ्यता संस्कृति को हम इस स्तर पे सीखते हैं और इस स्तर पे ले जा सकते हैं। धन्यवाद। आईनेट्स प्रेस के लॉन्च के लिए और साथ में इस फर्स्ट बुक ऑफ आईनेट्स प्रेस के रिलीज के लिए डिग्नेटरीज को आमंत्रित करना चाहूँगी। प्रोफेसर बलराम सिंह जी, डॉक्टर सपना शाह जी, डॉक्टर धनंजय तिवारी जी, डॉक्टर रमा जी, और हमारे बीच डॉक्टर प्रशांत शुक्ला जी।
इसका एक लंबा इतिहास है। भले ही आज हम इसकी पहली पुस्तक रिलीज़ कर रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि जैसे भी हम लोग देखते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी का एक पब्लिकेशन विंग होता है, तो हमारा जब इंस्टीट्यूट बना तो सारे लोग काफ़ी अच्छे विद्वान हैं। बलराम सर के अपने तमाम सारे रिसर्च पेपर्स, बुक्स जगह जगह से पब्लिश होती रहती हैं। हम लोगों का भी जब थेसिस पब्लिकेशन की बात आती थी तब भी ये होता था कि हाँ, किस पब्लिशर के पास जाएं, कौन कौन सी व्यावहारिक समस्याएं आती थीं, उन सबको हम लोग देखते थे। तो जब इनेट्स बना और हम सारे लोग इनेट्स से जुड़े तो ये हुआ कि हमारा एक प्रकाशन विभाग होना चाहिए जो अपने संस्थान से जुड़ी चीज़ों को पब्लिश करे। मैं मूलतः संस्कृत और वैदिक साहित्य का छात्र हूँ और मैंने इस फील्ड में देखा है कि संस्कृत में प्रायः जो गुणवत्तापूर्ण प्रकाशन हैं उनका धीरे धीरे क्षरण हुआ है, काफ़ी ह्रास हुआ है। तो मैंने देखा कि हमारा जो वैदिक साहित्य है उसका भी प्रकाशन के लिए अगर हम किसी भी एक पब्लिशर के पास जाएं, इवन भारतीय पब्लिशर, तो उनके पास पता चलता है कि एक वेद की एक लाइन टाइप करने के लिए भी उनके पास सही से तकनीकी क्षमता नहीं होती है। तरह तरह के फ़ॉन्ट होते हैं जो जाते हैं बदल जाते हैं। इस तरह कंप्यूटर पर, मोबाइल पर जब आता है तो वो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। और भी बहुत सारी व्यवहारिक समस्याएं हम लोगों को देखने में आती थी। तो ये हुआ कि हमारा इनेट्स जो है ये इसके जो अभी दो मेन पार्ट्स हैं, एक बॉटलियम रिसर्च सेंटर है और स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज़ है। ये दोनों एक तरह से कहा जाए तो विज्ञान, अध्यात्म, इन दोनों को साथ में लेकर के चल रहा है। तो हमने भी सोचा कि विज्ञान और वैज्ञानिक साहित्य और आध्यात्मिक साहित्य, हमारा सांस्कृतिक साहित्य, इन सारी चीज़ों को भी हम लोग एक साथ रखते हैं और एक साथ पब्लिश करते हैं। तो ये धीरे धीरे ये सारी चीज़ें पनपनी शुरू हुई। व्यक्तिगत रूप से जब मैं अपनी ओर से देखूं तो मुझे जो पुस्तकें पब्लिश करने में समस्याएं आती थीं, तो तमाम सारा जब किसी पब्लिशर के पास जाते थे तो वो लोग अपनी शर्तें थोपते थे कि हम ऐसे करेंगे, इतनी कापी आपको देंगे, बाद में फिर हम बेचेंगे। जो व्यावहारिक बिजनेस की समस्याएं थी वो सारी थी। तो ये हुआ कि नहीं, हम लोग अपना शुरू करते हैं। और हमारी और बलराम सर की जो एक सबसे अच्छी आदत है कि कोई भी प्रॉब्लम पड़ती है तो उसका सल्यूशन ये खुद निकालते हैं। पिछले 10-15 सालों से मैं भी इनसे कुछ सीखने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी समस्या आए तो उसको हम अपने कंधे पर लेते हैं और उसका सल्यूशन हम खुद ढूंढते हैं। तो इनेट्स प्रेस भी उसी क्रम में एक नया स्टेप है। अब रही बात कि इसका एक जो पुस्तक हम लोगों ने चूज़ किया, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, हमारी पुस्तक का पहली पुस्तक का ये नाम है। तो हम लोग प्रायः 1.5 साल से चर्चा करते रहते थे। इस समय आप लोग राजनीतिक गलियारों में देख रहे होंगे रामचरितमानस की प्रतियां जलवाई जा रही हैं और इस पर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है। सोचिए, वह पुस्तक जो मध्यकाल में जो भारत के जो हिंदू थे उनके मन जो निराश हताश थे, जो कभी ये सोच भी नहीं सकते थे कि हम मुगलों की अत्याचारपूर्ण गुलामी से बाहर आ सकेंगे, जिस पुस्तक ने पूरे भारत को आध्यात्मिक रूप से, नैतिक रूप से खड़ा किया, आज उस पुस्तक को राजनीतिक लाभ के लिए विवादित बता करके और उसकी निंदा की जा रही है। जबकि ये उस कालखंड में लिखा गया जब भारत में विदेशी अत्याचार बहुत होते थे। तो हम लोगों के मन में बात होती थी कि हम कोई भी चीज़ जब हम उसके साक्षी नहीं होते हैं, कोई दूसरा हमें बताता है, तो हम उसको, कई बार होता है बताने की प्रक्रिया गलत होती है, शब्द अर्थ हमें नहीं पता होते, इसलिए हम गलत अर्थ समझ लेते हैं। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि ये सारी चीज़ें जनता के समक्ष रखी जाएं, क्योंकि अगर हम अपनी सभ्यता, संस्कृति, साहित्य को सही रूप में नहीं रखेंगे तो दूसरे लोग अगर करेंगे तो उसको मिस इंटरप्रेट करेंगे और उसके बाद फिर उसका क्या हाल होता है। रामचरितमानस का इस समय आप देख रहे हैं किस तरह से राजनीतिक विद्वेष बस तरह तरह का जो है विखंडन समाज में पैदा किया जा रहा है। तो हम लोगों की चर्चा होती थी, हम लोगों की इनेट्स की जो फैकल्टीज़ हैं, खासतौर से SIS के, स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज़ के, हम लोगों की वीकली मीटिंग होती है, उसमें बलराम सर की चर्चाएं होती थी। हम लोगों की जो पर्सनल मीटिंग इनके साथ होती थी उसमें भी ये चर्चाएं होती थी कि इसका अर्थ क्या है। एक एक शब्द पर होता था कि इस शब्द का अर्थ क्या है, इसकी व्युत्पत्ति क्या है, इसकी एटिमोलॉजी क्या है। तो धीरे धीरे ये ढोल गंवार शूद्र पशु नारी का ये आइडिया आया और हम शायद इसमें 5 लेखक हैं और सब में सह लेखक के रूप में बलराम सर हैं, इसलिए संपादक के रूप में बलराम सर का नाम सबसे ऊपर दिया गया है। अंदर आप लोग देखेंगे तो और भी लोगों के जो सह लेखक हैं उनका नाम मिलेगा। तो हम लोगों का सबका एक सामूहिक दृष्टि से कैसे इसको देखें, जैसे उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगा, जो हम लोगों की पंचमहाविद थ्योरी है फिलॉसफी की, अभी प्रशांत शुक्ला जी भारतीय दर्शन की बात कर रहे थे, क्षिति जल पावक गगन समीरा, गंवार शूद्र पशु नारी की बात करते हैं तो
गोस्वामी तुलसीदास कहीं न कहीं उस पंचमहाभूत थ्योरी को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने अनुभव और ज्ञान के माध्यम से। यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, गोस्वामी तुलसीदास जी इसकी रचना कब किए थे? वो लगभग जब सन्यासी बनने की उम्र में पहुंच चुके थे, 70-75 साल के आसपास उन्होंने किया था। और वो संस्कृत के विद्वान थे। कहा जाता है कि ये अपने ग्रंथ पहले संस्कृत में लिखते थे, तो कोई प्रेत उसको सारा गायब कर देता था, जो भी लिखते थे अगली सुबह तक गायब हो जाता था। और उसके बाद फिर इन्होंने लोक भाषा में लिखने का संकल्प लिया और लोक भाषा में फिर वो आगे बढ़ा। तो कोई प्रेत गायब करता था नहीं करता था, ये तो बहस का विषय हो सकता है, लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर के उन्होंने किया कि एक वरिष्ठ विद्वान जो अपने जीवन के 7 दशक पूरे कर चुका है, वो अपने ज्ञान को लोक भाषा में प्रकट करने के लिए एक कोई ग्रंथ लिख रहा है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उसके पास कितना शास्त्रीय अनुभव होगा। वो एक डिसिप्लिन का मास्टर है, वो संस्कृत का विद्वान है। रामचरितमानस के जितने भी कांड हैं उसके प्रारंभ में आपको संस्कृत के श्लोक मिलते हैं। आप देखें तो आपको पता ही नहीं चलता है कि हिंदी है कि संस्कृत है। कुछ श्लोकों को छोड़ दिया जाए तो जब कहते हैं श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, आप ये नहीं समझ पाते हिंदी है कि संस्कृत है। संस्कृत भी यही है, हिंदी भी यही है, आप पूरी तरह से समझते हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास किस उच्च कोटि के विद्वान रहे होंगे कि एक जटिल विषय को भी लोक भाषा में प्रस्तुत कर सकें। तो जब कोई विद्वान इस तरह से लिखता है तो वो कितना पहुंच करके लिखा होगा, कोई गलती से वो नहीं लिखा होगा, और उसका मंतव्य क्या रहा होगा, तो उसको हमें समझने की जरूरत है। तो हम चर्चा कर रहे थे पंचमहाभूत थ्योरी की, तो इसमें पुस्तक देखेंगे तो इसमें आपको ये भी मिलेगा कि हाँ, ये जो किया गया ढोल गमार शूद्र पशुनारी, वो जो 5 का ये उल्लेख करते हैं, तो कहीं न कहीं पंचमहाभूत थ्योरी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ढोल क्या है? शब्द पैदा करती है, शब्द आकाश का गुण है। तो इस तरह से नारी क्या है? नारी एक तरह से हम कहें अग्नि का प्रतीक है, सारी चीजों की रचना करती है। धरती क्या है? वो गंधवती पृथ्वी। तो ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये 5 को कहीं न कहीं इन पंचमहाभूतों से जोड़ करके वो आगे गोस्वामी तुलसीदास ये पूरे समाज को प्रस्तुत करते हैं कि समाज भी अगर एक शरीर है तो उसका एक प्रतिनिधि तत्व के रूप में ये सारी चीजें हैं, और इसको कहीं न कहीं हमें समझने की जरूरत होती है। अगर हम समझेंगे नहीं, क्या ढोल पीट देना ही ढोल बजाना है? आप खुद सोचिए, हम तो हाथ से पीटते हैं, दोनों हाथ से पीटते हैं, क्या ढोल पीटना ही ढोल बजाना होता है? थोड़ा सा ज्यादा पीट देंगे फट जाएगा, उसको भी उसके जो ताने बाने होते हैं उसको कसना पड़ता है। तो ढोल बजाना, मैं खुद बता रहा हूँ, हमारे घर के सामने मंदिर है, रोज शाम को रामचरितमानस का पाठ होता था, गाया बजाया जाता था। मैं आज तक ढोल नहीं सीख पाया, पता नहीं क्यों, मुझसे संभव ही नहीं हो पाया। ठीक है, हमने PhD कर ली, लेकिन मुझे ढोल बजाना आज तक नहीं आया, मैं नहीं सीख सकता। तो क्या ढोल को पीटना ढोल बजाना है? एक सिंपल से एग्जाम्पल। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, स्त्री के लिए भी, गंवार के लिए भी, गंवार कहना एक तरह से अपने यहाँ ये मान लिया गया कि नहीं, कोई हे पुरुष है, समाज का जो है असभ्य पुरुष है, उसको हम गंवार कह देते हैं। गंवार का अर्थ होता है कि वो गांव का कोई भी व्यक्ति, वो दिखावे में नहीं पड़ता, वो सोफिस्टिकेटेड नहीं होता है, वो नेचुरल होता है। तो उसको अगर हम समझेंगे नहीं, नेचर को भी, अगर पृथ्वी को भी आप देखते हैं कि जिस तरह से तमाम सारी चीजें हैं, अंधाधुंध दोहन करते रहेंगे तो कितने 100 साल आप और आगे रह पाएंगे? क्या आपकी आने वाली पीढ़ियां इस पृथ्वी को पाएंगी जो आपने पाई थी, आपके दादाजी ने पाई थी? तो इसी तरह से स्त्रियों के बारे में भी है कि हम लोगों के यहाँ स्त्रियों की जो भारतीय संस्कृति में इज्जत रही, सोचिए कि जो हम लोग कल्पना करते हैं कि जंगल में रहते थे, एक दूसरे को मारते काटते थे, जो विकासवाद का सिद्धांत कहता है, और वो आज इस स्थिति में है कि स्त्रियों को सर्वोच्च माना गया, सबसे महत्वपूर्ण माना गया, उनको माता का दर्जा दे करके बाकी सारी चीजें उसके नीचे आ जाती हैं। तो ये धीरे धीरे ये जो विकास हुआ, क्या उसको पीटना था? जरा सोचिए कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिस तरह से समाज में विद्वेष फैलाया जा रहा है, क्या वो पीटना था? ताड़ना जो है, क्या यही अर्थ होता है और कोई नहीं होता? अगर हम लोग पाणिनि अष्टाध्यायी को देखें तो उसमें बहुत सारी संस्कृत की ऐसी क्रियाएं बताई गई हैं जिसमें वो एक ही क्रिया है, वो एक भाषा में दूसरी है, दूसरी भाषा में दूसरा अर्थ है, और उसमें वो उदाहरण के साथ देते हैं, उस ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। तो उसी तरह से ताड़ना है। गोस्वामी तुलसीदास संस्कृत के विद्वान थे, अवधि में ताड़ना का अर्थ क्या होता है वो अलग है, संस्कृत में क्या है वो अलग है। वो दोनों के विद्वान थे, उन्होंने दोनों अर्थों में प्रयोग किया है, लेकिन हम अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कि हाँ हम जो कह रहे हैं वही सही है, उसके लिए हम कहते हैं कि नहीं ये ऐसा था, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो ढोल गंवार शूद्र पशुनारी पहली हमारी किताब थी, तो ये एक सोशल मैसेज भी देना था
कि हम लोग साइंटिफिक इंस्टीट्यूट भी हैं, ह्यूमैनिटीज़ से भी हैं, और अभी आपने योगी सत्यम जी को सुना, और संस्कृत और वैदिक विषयों का मैं खुद विद्यार्थी हूँ, छात्र हूँ। तो ये सारी चीज़ें जब एक होलिस्टिक अप्रोच चलता है, सबको साथ में लेकर के चलते हैं, तब हम समष्टि का दर्शन कर पाते हैं और वो समाज में समरसता आती है। हम टुकड़ों टुकड़ों में कोई चीज़ नहीं समझ सकते, हम टुकड़ों टुकड़ों में अंदर तक जा सकते हैं, लेकिन हम पूरे को समग्रता से जब तक नहीं समझेंगे तो हम साथ में नहीं रह सकते, फिर हम विखंडनवादी हो जाएंगे। तो इन्हीं सारे उद्देश्यों को लेकर के ये हम लोगों ने पहली पुस्तक प्रस्तुत की है। और भी सीरीज़ में पाइपलाइन में बहुत सारी किताबें कुछ आधी हुई हैं, कुछ आधे से अधिक हुई हैं, कुछ लेखन प्रक्रिया में हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी भी एक सीरीज़ है। हम लोगों ने ये प्लानिंग किया है कि जो पंच तत्वों की बात इसमें की गई है, ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी, इन सारी चीज़ों के ऊपर एक एक पुस्तक यानी 5 पुस्तकें इसकी आएंगी। ये अभी एक पहली है, हो सकता है उसका टाइटल अलग हो, लेकिन ये इस सीरीज़ की एक पहली पुस्तक है। ये यात्रा जारी रहेगी और हम चाहेंगे कि इसकी गुणवत्ता और अच्छे से अच्छी करें। एक चीज़ और हमने किया जो इसको बताना चाहूँगा कि हम लोग एक तरह से साइंस और आर्ट्स सबको, सोशल साइंस सबको एक साथ लेकर के चल रहे हैं। तो हमने इसमें पुस्तक में देखेंगे कि एक पेपर है, इंग्लिश में लिखा है डॉक्टर राजकुमार और बलराम सर का, वो बायोलॉजी का है एक तरह से, इनका जो अब इन लोगों का अपना फील्ड है। तो अब हम देखते हैं कि 2 विषय के जो रिसर्च पेपर है, खास तौर से अभी कुछ पेपर हमारे पास जो हमारी कुछ प्रोसीडिंग हम लोग वेब्स की पब्लिश कर रहे हैं, उसमें मैथ के पेपर्स आए हैं। जब हम देखते हैं 2 लैंग्वेज को एक डॉक्यूमेंट में हैंडल करना हो, मैथमेटिकल सिंबल्स को एग्जैक्टली दिखाना हो, तो बड़ी समस्याएं आती हैं, एमएस वर्ड में वो पॉसिबल नहीं होता। तो मैंने खुद उसके लिए एक मैथमेटिकल बुक्स के, साइंटिफिक बुक्स के पब्लिकेशन के लिए एक सिस्टम होता है लेटेक, जिसको लेटेक, लाटेक, लेटेक्स कई तरह से बोलते हैं। तो मैंने उसको अभी मैं सीख भी रहा हूँ, और ये पुस्तक मैंने उसमें किया है कि अगर हमें साइंटिफिक पेपर्स भी, साइंटिफिक पब्लिकेशंस भी पब्लिश करने हों तो हमारा संस्कृत का भी उसके साथ रहेगा, और साइंस जो प्योर साइंस कोर मैथमेटिक्स हो उसको भी हमें साथ में पब्लिश करने में कोई समस्या नहीं आए। और अभी एक चीज़ और थोड़ा सा बाकी रह गया है, मैं खुद वैदिक साहित्य का छात्र हूँ। वेद के जो सिंबल्स होते हैं उसमें कहीं नीचे अनुदात्त का चिन्ह लगता है, ऊपर स्वरित का चिन्ह लगता है, कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं, संख्याओं के ऊपर अनुदात्त और स्वरित का चिन्ह लगता है। वो सारी चीज़ें अभी डेवलपिंग प्रोसेस में हैं, क्योंकि यूनिकोड कंसोर्शियम ने अभी सारे वैदिक सिंबल्स को सम्मिलित नहीं किया है। तो धीरे धीरे हम साइंस और अध्यात्म, विज्ञान, कला सब को एक साथ लेकर के अपने पब्लिकेशन में भी लेकर के चल रहे हैं, और उसके लिए कुछ भी करना पड़े सीखने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। मैं बताऊं, जब मैं बीए फर्स्ट ईयर में था तो हमारे पास गांव में टेलीफोन नहीं था। मैं गांव पर अगर कोई संदेश देना होता था, 10 किलोमीटर एक टेलीफोन बूथ हुआ करता था, हमारे कॉलेज के टीचर थे उनके यहाँ लगा था। तो हम जाते थे, फ़ोन नंबर अपने उनका लिख करके लेके जाते थे, इलाहाबाद में पढ़ते थे, और हम सोचते थे कि हमारे छूने से कहीं टेलीफोन कुछ बिगड़ न जाए। हम उस टेलीफोन ऑपरेटर को देते थे जो पीसीओ होते थे शहरों में, लीजिए ये नंबर मिला दीजिए, हमें बात करनी है, फिर मैं बात करता था। मतलब टेक्नोलॉजी का एक फोबिया था कि कोई चीज़ हमसे ख़राब न हो जाए, बिगड़ न जाए। और वो छात्र आज एक मार्कअप लैंग्वेज, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज HTML होती है, उस तरह की होती है मार्कअप लैंग्वेज लेटेक, उसको मैं खुद सीखता हूँ, बताने वाला कोई नहीं, बस यही यूट्यूब से, गूगल से, इधर उधर से खोज करके, किसी ने नहीं बताया, खुद वो सब देख देख करके सीख करके ये जैसा भी अच्छा बुरा बन पड़ा है आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। कोई त्रुटियां होंगी तो आप लोग बिल्कुल हमें बताएंगे, निसंकोच बताएंगे। अभी इनएक्सप्रेस एक लर्निंग प्रोसेस में है, अभी और भी बहुत बढ़िया प्रोफेशनल होने में हम लोगों को हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन ये रुकेगा नहीं, ये इससे बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा, और बहुत बड़े मात्रा में गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के लिए हम लोग पूरे देश को, विश्व को कृत संकल्प हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस क्षण का साक्षी बनने के लिए। धन्यवाद।